اکثر کہا جاتا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ غربت کا ایک خدائی حل ہے، مطلب ایک ایسا نظام جو 1400 سال سے موجود ہے اور جس کا مقصد امیروں سے لے کر غریبوں تک دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا ہے۔ اسے روحانی پاکیزگی اور سماجی انصاف کا ایک ستون سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس نظام کی تعریف سے تھوڑا آگے بڑھ کر کچھ بہت گہرے اور چبھتے ہوئے سوالات اٹھاتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ سوالات اس نظام کی بنیاد، اس کی شفافیت اور آج کی دنیا میں اس کی عملی افادیت کے بارے میں ہیں۔ تو آج ہم اس نظام کو پرت در پرت کھولنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم اس کی بنیاد کو سمجھیں گے کہ یہ ٹیکس ہے یا عبادت، پھر دیکھیں گے کہ اس کا پیسہ کہاں جاتا ہے، اور آخر میں سب سے بڑا سوال پوچھیں گے، کیا یہ نظام آج کام کر رہا ہے؟ ہمارا مقصد ان تنقیدی نکات اور ان کے جواب میں علماء کے پیش کردہ دلائل دونوں کو غیر جانبداری سے سمجھنا ہے۔ تو آئیے اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال، کیا زکوٰۃ ایک رضاکارانہ عبادت ہے یا ایک جبری ٹیکس؟ جی، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ تاریخ میں خلیفہ ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف باقاعدہ جنگیں لڑیں۔ یہ تو کسی رضاکارانہ خیرات جیسا نہیں لگتا، یہ تو سیدھا سیدھا ریاست کی طرف سے ٹیکس وصولی کا معاملہ لگتا ہے۔ یہیں سے یہ گفتگو دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ کے دوہرے کردار کو سامنے لاتی ہے۔ علماء کے نزدیک یہ ایک ہی وقت میں ایک ذاتی عبادت بھی ہے اور ایک اجتماعی ذمہ داری بھی۔ اچھا، جب وہ اسے عبادہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ فرد کا اپنے خدا کے ساتھ ایک روحانی معاملہ ہے، لیکن جب وہ اسے حق اللہ یعنی اللہ کا حق کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غریبوں کا حق ہے جو امیروں کی دولت میں موجود ہے، اور اس حق کو وصول کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ریاست کا جنگ پر اتر آنا، کیا ریاست کو مذہبی ٹیکس ادا کرنے سے انکار کرنا بذات خود ایک سیاسی بغاوت نہیں ہے؟ ہمارے ذرائع میں ان دونوں کے درمیان لائن کہاں کھینچی گئی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ دیکھیں، ابتدائی اسلامی ریاست میں مذہب اور ریاست ایک دوسرے سے الگ نہیں تھے۔ صحیح۔ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنا صرف ایک مذہبی حکم کو توڑنا نہیں تھا، بلکہ یہ خلیفہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا، یعنی ریاست کے ڈھانچے کو کمزور کرنے کی کوشش۔ تو یہ بغاوت بھی تھی۔ جی، اس لیے ابو بکر کی جنگوں کو صرف ٹیکس وصولی کے لیے تشدد کے طور پر نہیں، بلکہ ریاست کو ٹوٹنے سے بچانے کی ایک کوشش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں مذہبی فریضے کا نفاذ بھی تھا اور ریاست کا تحفظ بھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ٹیکس اور عبادت کا ایک امتزاج ہے، لیکن پھر اس کی شرح پر سوال اٹھتا ہے، یہ ہمیشہ 2.5% کیوں رہتی ہے؟ جی، آج کل کے ترقی پسند ٹیکس نظام میں امیروں پر زیادہ ٹیکس لگتا ہے اور غریبوں پر کم، لیکن زکوٰۃ کی شرح ایک کسان جس کے پاس 10,000 پاؤنڈ کے مویشی ہیں اور ایک ارب پتی، دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ کیا یہ سادگی ایک ارب پتی کے حق میں اور ایک غریب کسان کے خلاف نہیں جاتی؟ کیا انصاف سادگی سے زیادہ اہم نہیں؟ یہ ایک بہت مضبوط تنقید ہے، اور اس کا دفاعی نقطہ نظر بھی اتنا ہی دلچسپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا موازنہ انکم ٹیکس سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انکم ٹیکس نہیں بلکہ ویلتھ ٹیکس ہے۔ ویلتھ ٹیکس؟ جی، اور وہ بھی صرف اس دولت پر جو غیر فعال ہو، یعنی جو 1 سال تک آپ کی بنیادی ضروریات سے زیادہ پڑی رہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو پیسہ جوڑ کر رکھنے سے روکنا اور اسے معیشت میں گردش کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ اچھا، اس منطق کے مطابق ایک ارب پتی کو اس کی غیر فعال دولت پر سزا مل رہی ہے کہ وہ اسے سرمایہ کاری میں کیوں نہیں لگا رہا۔ مقررہ شرح کا دفاع اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ یہ خدائی طور پر طے شدہ ہے تاکہ انسانی مداخلت سے بچا جا سکے اور نظام سادہ اور عالمگیر رہے۔ لیکن اسی نظام میں ایک اور پیچیدگی ہے، جو نصاب یعنی وہ کم از کم رقم جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کے تعین میں نظر آتی ہے۔ جی، سونے اور چاندی کا معیار۔ بالکل، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ 2026 کے اعداد و شمار کے مطابق اگر چاندی کے معیار کو استعمال کیا جائے تو ایک بہت غریب شخص پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جبکہ سونے کا معیار اسے مستثنی قرار دیتا ہے۔ یہ تو ایک ہی نظام کے اندر ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ یہ ایک بگ جیسا نہیں لگتا؟ اسے بگ کے بجائے ایک ایسے فیچر کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو انسانی اجتہاد اور تشریح پر انحصار کرتا ہے۔ اچھا،
और ये उलमा के दरमियान बहुत बड़ी बहस है। क्लासिकी उलमा चांदी के मेयार को तरजीह देते थे क्योंकि इससे ज़कात का पूल बड़ा होता था और ज़्यादा गरीबों की मदद की जा सकती थी। मंतकी बात है। लेकिन आज के दौर में जहां चांदी की कीमत बहुत गिर गई है, अक्सर जदीद उलमा सोने के मेयार की वकालत करते हैं ताकि मुतवस्सित तबके पर, जो पहले ही माशी दबाव का शिकार है, मजीद बोझ ना पड़े। इससे जाहिर होता है कि निज़ाम उतना भी गैर लचकदार नहीं जितना लगता है, बल्कि इसमें मकामी माशी हालात के मुताबिक फैसले करने की गुंजाइश मौजूद है कि आखिर ये ज़कात लेगा कौन। जी। और यहाँ सबसे पहला और बड़ा एतराज़ ये है कि ज़कात आमतौर पर सिर्फ मुसलमानों को दी जा सकती है। आज की आलमगीर दुनिया में जहाँ किसी भी आफत में हर मजहब के लोग मुतासिर होते हैं, ये कहना कि माफ़ कीजिएगा ये मदद सिर्फ मुसलमानों के लिए है, क्या ये मजहबी इम्तियाज नहीं? रिवायती तौर पर इसका दिफा ये कहकर किया जाता है कि ज़कात एक अंदरूनी कम्युनिटी को मजबूत करने का निज़ाम है, एक तरह का इस्लामी सोशल सिक्योरिटी नेट। जैसे दूसरे मज़ाहिब और कम्युनिटीज़ में भी अपने लोगों को तरजीह दी जाती है। इसके अलावा इस्लाम में सदका का तसव्वुर मौजूद है, जो बगैर किसी मजहबी तफरीक के हर ज़रूरतमंद की मदद के लिए है। ठीक है। लेकिन आपका सवाल बहुत अहम है और हमारे ज़राए बताते हैं कि जदीद उलमा की एक बड़ी तादाद अब इस पर नज़र-ए-सानी कर रही है। वो कहते हैं कि शदीद इंसानी बहरान जैसे कहत या ज़लज़ला की सूरत में इंसानी जान बचाना अव्वलीन तरजीह है और वहाँ ज़कात गैर मुस्लिमों को भी दी जा सकती है। अच्छा, ये तो हुई ज़रूरतमंदों की बात। लेकिन मुस्तहिकीन की फहरिस्त में एक कैटेगरी ऐसी है जो मुझे सबसे ज़्यादा हैरानकुन लगी, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब। जी, जिनके दिलों को माइल करना मकसूद हो। बिल्कुल। ज़राए में इसे सियासी हिमायत खरीदने या लोगों को मजहब तब्दील करने पर आमादा करने के लिए एक बजट से तशबीह दी गई है। क्या ये वाकई खैरात के ज़ुमरे में आता है? ये तो मजहबी रिश्वत जैसा लगता है। देखें, ये एक बहुत हसास नुक्ता है। इसका दिफा करने वाले इसे रिश्वत के बजाय सिफारतकारी या स्टेट क्राफ्ट के तौर पर देखते हैं। सिफारतकारी? जी, तारीखी तनाजुर में जब इस्लामी रियासत कमजोर थी तो इस फंड को ताकतवर कबायली सरदारों की दुश्मनी को कम करने या नए लोगों को कम्युनिटी में जम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे आप आज की खारिजा इमदाद यानी फॉरेन एड जैसा समझ सकते हैं, जो खालिस्तन इंसानी हमदर्दी पर मबनी नहीं होती, बल्कि इसके पीछे स्ट्रेटेजिक मकासद भी होते हैं। अच्छा नुक्ता है। ताहम इसके गलत इस्तेमाल का इम्कान इतना ज्यादा है कि बहुत से जदीद उलमा, खास तौर पर हजरत उमर के फैसले के बाद, इस कैटेगरी को या तो गैर फाल समझते हैं या इसकी तशरीह सिर्फ नए और ज़रूरतमंद मुसलमानों की मदद तक महदूद करते हैं। और फिर एक और मुतनाज़िया कैटेगरी है, फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में। जी। तारीखी तौर पर इसका मतलब फौजी मुहिमात और दिफाई जंगों की फंडिंग था। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे फंड को जो जंग के लिए इस्तेमाल होता रहा हो, गुर्बत के खात्मे के एक अजीम निज़ाम के तौर पर कैसे पेश किया जा सकता है? ये शायद ज़कात पर होने वाली बहस का सबसे पेचीदा पहलू है। क्लासिकी तौर पर जी हाँ, इसका एक बड़ा हिस्सा रियासत के दिफा पर खर्च होता था। तो फिर? लेकिन ज़राया ये वाज़े करते हैं कि आज के दौर में उलमा की भारी अक्सरियत ने इसकी तशरीह को बहुत वसी कर दिया है। किस तरह से? अब अल्लाह की राह में का मतलब हर वो काम लिया जाता है जिससे अवाम का भला हो। इसमें अस्पताल बनाना, स्कूल कायम करना, पीने का साफ पानी फराहम करना और इस्लामी तालीमात की तरवीज सब शामिल हैं। वो वाज़े करते हैं कि इंतहा पसंद गुरोहों का इस कैटेगरी को अपनी दहशतगर्दी की फंडिंग के लिए इस्तेमाल करना इस्लाम की असल तालीमात की संगीन गलत तशरीह है। तो असल चैलेंज निगरानी का है। बिल्कुल। असल चैलेंज ये है कि इस वसी तशरीह का दायराकार क्या हो और इसकी निगरानी कौन करे। ठीक है, तो अब हम इस बहस के सबसे बड़े और अमली सवाल की तरफ आते हैं। मान लिया कि ये निज़ाम नज़रियाती तौर पर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ज़कात वाकई गुर्बत का खुदाई हल है, तो 1400 साल गुजरने के बाद भी दुनिया के कई गरीब तरीन ममालिक मुस्लिम अक्सरियती क्यों हैं? ये निज़ाम अमली तौर पर इतना गैर मौसर क्यों नजर आता है? जी, और उसका जवाब जो ज़राए में बार बार मिलता है वो ये है कि आप ब्लूप्रिंट को इल्ज़ाम नहीं दे सकते हैं अगर इमारत ही ठीक ना बनाई गई हो। मतलब ये कि उलमा का मौक़िफ़ है कि ज़कात कोई अकेला जादुई हल नहीं है, ये एक पूरे इस्लामी मुआशी निज़ाम का सिर्फ एक हिस्सा है। अच्छा। इस निज़ाम में सूद से पाक बैंकारी,
विरासत के मुनसफाना कवानीन और औकाफ का निज़ाम भी शामिल है। जब आप पूरे इंजन के बजाय सिर्फ एक पुर्जा चलाने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। वो अक्सर खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर की मिसाल देते हैं, जब इस्लामी मुआशी निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाफिज था तो मुबैना तौर पर कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। लेकिन ये एक बहुत आसान वजाहत नहीं लगती। निज़ाम ठीक से नाफिज नहीं हुआ, ये तो हर नाकाम पॉलिसी के बारे में कहा जा सकता है। सही। और ये मसला शफाफियत की कमी से और भी संगीन हो जाता है। ज़राए के मुताबिक हर साल अरबों डॉलर की ज़कात जमा होती है, लेकिन इसका कोई आलमी आज़ादाना ऑडिट नहीं होता। इससे तो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के लिए दरवाजे खुल जाते हैं ना। बिल्कुल, और ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब एक बड़ा रियासती निज़ाम मौजूद ना हो तो गवर्नेंस का खला पैदा होता है, और इसी खला में करप्शन और बदइंतजामी पनपती है। ये वो मकाम है जहां एक खुदाई निज़ाम इंसानी कमजोरियों से टकराता है। उलमा भी ये तस्लीम करते हैं कि ये मुसलमानों की नाकामी है, इस्लाम की नहीं। लेकिन एक आम आदमी के लिए जिस तक मदद नहीं पहुंच रही, ये फर्क तो बेमानी हो जाता है। जी बिल्कुल, बेमानी हो जाता है। इसीलिए जदीद इस्लामी मालियाती इदारे अब डिजिटल ट्रैकिंग और बाकायदा ऑडिट के जरिए शफाफियत लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां ज़कात गैर रस्मी तौर पर दी जाती है, वहां ये अब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें एक और दिलचस्प पहलू ये है कि ज़कात जमा करने वाले यानी आमिलीन खुद इस फंड से अपनी तनख्वाह लेते हैं। जी। कुरान ने उन्हें 8 मुस्तहिकीन में शामिल किया है। नाक़दीन कहते हैं कि इससे तो एक खुदगर्ज ब्यूरोक्रेसी पैदा हो सकती है, जिसका मफाद इसी में हो कि गुर्बत बाकी रहे। ये एक जायज़ खदशा है, लेकिन इसका दिफा ये है कि किसी भी बड़े फलाही निज़ाम को चलाने के लिए पेशावर अफराद और इंतज़ामी अखराजात की ज़रूरत होती है। यानी जैसे NGOs के अखराजात होते हैं। बिल्कुल, इसे आप जदीद NGOs के इंतज़ामी अखराजात की तरह समझ सकते हैं। ये इस बात को यकीनी बनाने की कीमत है कि ज़कात सही लोगों तक मौसर तरीके से पहुँचे। असल मसला इस बात को यकीनी बनाना है कि ये अखराजात एक मुनासिब हद के अंदर रहें, जो क्लासिकी फ़िक़ह में तकरीबन 12.5% तक बताई गई है, और उसमें मुकम्मल शफाफियत हो। आखिर में एक और बुनियादी तनकीद ये है कि क्या ज़कात गुर्बत को ख़त्म करती है या उसे सिर्फ जिंदा रखती है। यानी अगर आप किसी गरीब खानदान को हर महीने थोड़ी सी नकद रकम दे दें तो आप उन्हें जिंदा तो रख रही हैं, लेकिन क्या आप उन्हें गुर्बत के चक्कर से बाहर निकाल रही हैं? वो रकम इतनी नहीं होती कि वो कोई कारोबार शुरू कर सकें या अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकें। ये एक बहुत ही अहम और अमली तनकीद थी, और अच्छी खबर यह है कि ज़राए के मुताबिक जदीद ज़कात इदारे अब इस सोच को बदल रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? अब प्रोडक्टिव ज़कात का तस्वुर सामने आ रहा है। प्रोडक्टिव ज़कात? जी, यानी किसी भूखे को एक दिन मछली खिलाने के बजाय उसे कांटा और डोरी खरीद कर दी जाए ताकि वो खुद मछली पकड़ना सीख ले। अब ज़कात के फंड से लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया दिया जा रहा है, किसी को सिलाई मशीन खरीद कर दी जा रही है, या होनहार तुलबा को आला तालीम के लिए वज़ाइफ दिए जा रहे हैं ताकि वो खुद कफील बनकर ज़कात देने वाले बन सकें, ना कि लेने वाले। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? हमने देखा कि एक तरफ ज़कात को एक कामिल खुदाई निज़ाम के तौर पर पेश किया जाता है जो रूहानी पाकीज़गी और समाजी इंसाफ को यकीनी बनाता है जी, लेकिन दूसरी तरफ इसी निज़ाम पर फरसूदा, गैर मुअस्सर और बाज़ औक़ात इम्तियाजी होने की तनकीद भी की जाती है। बिल्कुल, और यहाँ जो बुनियादी कशमकश नजर आती है वो नजरियाती ढांचे और अमली निफाज के दरमियान है। दिफा करने वालों का इसरार है कि निज़ाम के डिज़ाइन में कोई खामी नहीं, बल्कि उसकी नाकामी खालिस्तन इंसानी अवामिल की वजह से है, जैसे बदनवानी, नाकिस गवर्नेंस और सबसे बढ़कर उस पूरे इस्लामी माशी निज़ाम की अदम मौजूदगी जिसका ये एक हिस्सा है। आखिर में सामीन के लिए एक सोच छोड़े जाते हैं। हमारे ज़राए में एक जगह ये बहस की गई है कि कुछ मगरबी मुमालिक में मुसलमान ज़कात की अदायगी को सेक्युलर टैक्स से बचने के जवाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या हुकूमतें ज़कात की अदायगी पर टैक्स में छूट देती हैं। जी, ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है ना। अगर ज़कात एक रूहानी फरीज़ा है और टैक्स एक शहरी जिम्मेदारी, तो इस माशरे में क्या होता है जहां ये दोनों जिम्मेदारियां आपस में घुल मिल जाती हैं? अगर रियासत इबादत के एक अमल पर माली छूट देना शुरू कर दे, तो क्या वो इबादत
محض ایک مالیاتی لین دین میں تبدیل ہو کر اپنی اصل روح کھو دیتی ہے؟ کیا خدا کے ساتھ ایک روحانی معاملہ ریاست کے ساتھ ایک ٹیکس ایڈجسٹمنٹ بن جاتا ہے؟